Now the next question is question number 3, that is give geographical reasons. The first is in developed countries percentage of population engaged in agriculture is low. Now we all know that basically the occupations are primary, secondary, tertiary occupations. Okay, now agriculture is an primary type of occupation, and in developed countries the people are not much engaged in agriculture. Okay, why? Because the people are more engaged in quaternary, secondary and tertiary activities. Okay, so all the underdeveloped countries or developing countries are engaged most probably in primary occupation as compared to the developed countries. So because of that, the minimum people are engaged, and they are not engaged in mining, animal husbandry or agriculture. Hence the developed countries percentage is low in the case of primary occupation, or you can say agriculture is low. Now the second question is literacy rate of a country is an indicator to its socio-economic development. Now what is socio-economic development? When do we say that any country is socially and economically developed? When the standard of living of that country is high, educational facilities are good, medical facilities are good. Okay, all these things are considered in the case of socio-economic development. So if the higher rate of women is means educated, she is literate, she is employed, then definitely the per capita income will increase, the GDP will increase. So when we will call that socio-economic development is seen in a specific country, it is only when the people in the country are well settled, they are well skilled, they are well educated, all are employed, the poverty reduces, the family is the plan of the family is a smaller family. So all these things are going to be calculated in the case of socio-economic activities. Hence literacy rate of any country is an indicator of socio-economic development. Question number 3 is demographic dividend increases when proportion of working population increases. Okay, so the answer for this is the productivity of any country depends on whom? On two bases, that is working population, non-working population. Now who is the working population? The age group between 15 to 65 who can earn their livelihood are considered as working population. And who is non-working population? The age group from 0 to 14, that is the children, and the age group from 60 above, that is the old age people, are considered as non-working population. So if there are more working population, definitely the development of the country will be more. But if there are less working population and more dependency on those, then definitely the economic condition will not get boosted up. Okay, so if there is more working population, then definitely the development of the country will boost up, per capita income will increase, and hence demographic dividend increases only when the working population is going to increase, that is between 14 to 60. Next question is migration is not always permanent. Yes, we all know that people, they keep on migrating. Okay, they keep on migrating on the basis of job, on the basis of education, okay, for better standard of living. Okay, seasonal migrations are there, short term migrations are there, okay, long term migrations are there. So it depends. It is not always that once a person migrates, he never moves from that place. It is not like that. Next question is difference between, the first क्वेश्चन इज डोनर रीजन एंड रेसिपिएंट रीजन. अभी डोनर रीजन क्या होता है? डोनर रीजन इज द रीजन फ्रॉम वेयर द पीपल माइग्रेट, जहाँ से लोग निकल जाते हैं, ठीक है. एंड रेसिपिएंट रीजन इज व्हाट, वेयर द माइग्रेशन टेक्स प्लेस, और वेयर द पीपल गो, जहाँ पे पीपल जाके रहते हैं, दैट इज द रेसिपिएंट. अभी डोनर में क्या होगा? डोनर में क्या कुछ तो कमी होगी कि वहाँ पे कुछ पानी नहीं है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसीलिए लोग वहाँ से निकल जाते हैं. और रेसिपिएंट में कुछ तो अच्छा होगा, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते हैं. सो द पॉपुलेशन इन द रेसिपिएंट इंक्रीजेस. ओके, अभी डोनर का क्या होगा कि पब्लिक फैसिलिटीज़ आर नॉट फुल्ली यूज्ड, क्योंकि लोग वहाँ से कम होते जा रहे हैं. और रेसिपिएंट पे क्या होगा कि वहाँ पे लोड आता जाएगा. ओके, देयर विल बी बर्डन ऑन ऑल दी पब्लिक फैसिलिटीज़. Now from donor region mostly young men migrate to the areas in the search of job business. Okay, और recipient में क्या होता है कि young men are added to the population for job opportunities and business and education.
व्हाट हैपन्स इन डोनर कि यंगस्टर्स निकल जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन कम होता है, और नॉन वर्किंग के जो लोग होते हैं बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 14 और 60 प्लस के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और रेसिपिएंट में वर्किंग एज ऑफ पीपल आर मोर, लाइक द पीपल बिटवीन 15 to 60 एज ग्रुप आर वेरी मच मोर. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट. आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो किसी विलेज का नाम, सो दैट विलेज इज़ अ डोनर रीजन, एंड किसी सिटी का नाम दे सकते हो आप रेसिपिएंट रीजन में, विच इज़ वेल डेवलप्ड सिटी. नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज एक्सपांसिव पिरामिड और कंस्ट्रक्टिव पिरामिड. अभी पॉपुलेशन पिरामिड के 3 टाइप्स है जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, लाइक एक्सपांसिव, कंस्ट्रक्टिव एंड स्टेशनरी. अभी एक्सपांसिव और कंस्ट्रक्टिव में डिफरेंस क्या है? एक्सपांसिव पिरामिड इज़ वेरी ब्रॉड एट द बेस एंड इट बिकम्स नैरो एट द एपेक्स. मतलब जो भी हम पिरामिड का आइडियल पिरामिड जब हम देखते हैं तो वैसा ही होता है कि वो ब्रॉड बेस पे बहुत ब्रॉड होता है और एपेक्स पे बहुत नैरो होता है. सो दैट इज़ द एक्सपांसिव पिरामिड. एंड कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है? इट इज़ नैरो एट द बेस एंड ब्रॉडर एट द एपेक्स, मतलब अपोजिट टू एक्सपांसिव. It shows that there is higher percentage of young people but lower percentage of old people. अभी अगर आपका broad base है, बेस में क्या होते हैं 0 to 10, 10 to 20, बेस में सारे यंगस्टर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है. सो इट मीन्स व्हाट? द रेशियो ऑफ द चाइल्ड इज मोर, एंड इफ द apex is broad, it means that the old population is more. Okay, it indicates high birth rate making the base broad and high death rate making the apex narrow. It indicates low birth rate making the base narrow and low death rate making the apex broad. So this is about the expansive and constructive. You just have to explain it. और एक आप और एक उसमें ऐड कर सकते हो, एक एग्जाम्पल लाइक एक पॉपुलेशन पिरामिड आप ड्रॉ कर सकते हो एज एन एग्जाम्पल इन योर डिफरेंस इन वाइल गिविंग द बोर्ड एग्जामिनेशन. अभी आंसर इन डिटेल फर्स्ट क्वेश्चन. आउटलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड इन द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. अभी पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में आपको सब कुछ बताना है, ठीक है. वो क्यों यूज़ करते हैं, क्या क्या होता है उसमें. अभी बेसिकली अगर आपको कंट्री का पॉपुलेशन पता होना चाहिए, वो भी सेक्स वाइज, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, फिर एज वाइज 0 to 10 में कितने हैं, 10 to 20 में कितने हैं, वो सारी चीज़ें आप पॉपुलेशन पिरामिड में पढ़ सकते हो, ठीक है. सो कंट्री वाइज, एज वाइज और सेक्स वाइज अगर आपको पॉपुलेशन एक ही डायग्राम में अगर जानना है तो उसके लिए पॉपुलेशन पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है. तो पॉपुलेशन पिरामिड डिज़ाइन करते कैसे हैं? यू रिक्वायर 2 एक्सिस, वन इज़ एक्स एंड वन इज़ वाई. तो एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या रखते हैं? सारे पॉपुलेशंस, और वाई एक्सिस में वी राइट द एज ग्रुप, ठीक है. तो आइडियली वाई एक्सिस इज ऑलवेज एट दी लेफ्ट हैंड साइड, बट यहाँ पे वाई एक्सिस वी ऑलवेज ड्रॉ इट इन दी center. Okay, so if you want to calculate the population pyramid to some other region, you have to draw a different population pyramid. एक ही population pyramid में आप अलग अलग एरियाज के populations denote नहीं कर सकते हो. If you want to find out some other years का population, you have to draw a new population pyramid. At a time you cannot calculate or you cannot draw a population pyramid for more than 1 year. So this is about the population pyramid. Okay, अभी बेस में all the youngsters are there like 0 to 10, 10 to 20. और अगर आप एपेक्स की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि इट इज़ 40 to 50, 50 to 60. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन दी एपेक्स. ओके, तो ब्रॉडर बेस है तो इसका मतलब क्या है कि चाइल्ड रेशियो इज़ मोर. ओके, अगर एपेक्स ब्रॉड है इसका मतलब क्या है कि ओल्ड पॉपुलेशन इज़ मोर. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू नीड टू एक्सप्लेन द पॉपुलेशन पिरामिड. पॉपुलेशन पिरामिड के फिर 3 टाइप्स होते हैं, वो भी आपको एक्सप्लेन करने हैं, लाइक एक्सपांसिव, कंस्ट्रक्टिव, स्टेशनरी. तो उनके बारे में भी आपको डिटेल में लिखना है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्वेश्चन ऑफ दिस. ओके, आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करते, वेटेज देखो पहले, इट इज़ फॉर 5 मार्क्स और इट इज़ फॉर 8 मार्क्स, तो उसके हिसाब से आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. अभी रूरल और अर्बन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है क्योंकि लाइफस्टाइल अलग होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ डिफरेंट. ओके, एंड
the population is also different, development is different. Okay, so area where more people are engaged in primary activities are called as rural areas, और जहाँ पे लोग सेकेंडरी और टर्शरी में एंगेज होते हैं उसे हम क्या बुलाएंगे, अर्बन पॉपुलेशन. ठीक है, अभी डिफरेंस इसमें मैंने वही बोला है कि डिफरेंस है यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, लाइफस्टाइल में डिफरेंस है, इनकम में डिफरेंस है, लिटरेसी रेट में है, एम्प्लॉयमेंट में है, सारी चीज़ों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा. ठीक है, एंड यू हैव टू राइट इट अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री. ठीक है, अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइग्रेशन की डेफिनेशन लिखोगे सबसे पहले. व्हाट इज़ माइग्रेशन? मूवमेंट ऑफ पीपल. ओके, वो परमानेंट हो सकता है, टेम्पररी हो सकता है, शॉर्ट टर्म हो सकता है, सीजनल, लॉन्ग टर्म, कुछ भी हो सकता है, बस मूवमेंट होनी चाहिए. ठीक है, तो मूवमेंट जब होती है तो दो रीजन्स में होती है, एक होता है डोनर, एक होता है रेसिपिएंट. सो यू नीड टू राइट अबाउट इट ऑल्सो. सो डोनर में क्या होगा जब माइग्रेशन होगा, तो रेसिपिएंट में क्या होगा जब उसके यहाँ पे लोग आके रह जाएंगे. ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू नीड टू एक्सप्लेन ओवर हियर कि कैसे वो सारी चीज़ों को इम्पैक्ट कर देता है. ओके, सो दिस इज़ अबाउट दी क्वेश्चन नंबर 3 कि कैसे आप डोनर और रेसिपिएंट के बारे में लिखते हो और किस तरीके से आप ये आंसर एक्सप्लेन करते हो. इसमें आप सेक्स रेशियो के बारे में भी लिख सकते हो, और वर्किंग एज में अगर कुछ कम है, ज़्यादा है, मतलब जो हमने डोनर और रेसिपिएंट के डिफरेंस में देखा था ना, वही आप पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज नंबर 2 which was there in your book. Okay, in your textbook. For exercise number 3, keep watching the videos. If you like the videos, please comment me in the comment section. Thank you for watching and do subscribe the channel.